الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین وعلی جمیع المسلمین والمسلمات اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات ذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتک قبل موتک. محترم سامعین، حاضرین مسجد، علماء دین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی لائق و زیبا اس وحدہ لا شریک خالق ارض و سما والی کے لیے ہیں، جنہوں نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر سب سے اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمائے ہیں. پڑھیے الحمدللہ. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ رب دو جہاں نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر ایک ایسی دنیا کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں، اور ایک ایسا دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اس کی تیاری کے لیے جو دنیا فانی ہونے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر اس بقا دنیا کی کامیابی و کامرانی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کی تیاری کے لیے رب دو جہاں نے اس سرزمین پہ ہمیں اور آپ کی بعثت فرمائی ہے. محترم سامعین، ہماری اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اس زندگی میں اس آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کے لیے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. اس کے اندر ہم اس دنیا کی تیاری کریں گے تو یوم آخرت میں، قیامت کے روز، قبر کی منزل میں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں اور آپ کو سرخرو ہونے کا موقع ملے گا اور ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فانی دنیا کے اندر اس بقا دنیا کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو صرف ہماری بعثت کی ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے شکل میں ہو، چاہے وہ جانوروں کے شکل میں ہو، چاہے وہ چرند کے شکل میں ہو، چاہے وہ پرند کے شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانداروں کے
لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری موت کو بنائے ہیں، پھر ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ غور و فکر کیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ قوم یہودیت ہو، چاہے وہ قوم نصرانیت ہو، چاہے وہ قوم مجوسی ہو، تمام کے تمام انسانوں کو اس بات پر اتفاق اور یقین ہے کہ ہمارے پاس موت آنے والی ہے، ہمیں مرنا ہے۔ لیکن موت کے علاوہ تمام چیزوں کے اندر دنیا کے اندر اختلاف ہے، یہاں تک کہ خدائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ کچھ فرقوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نہیں، دنیا ایسی چلتی ہے اور دنیا کا نظام ایسا چلتا رہے گا، ہم انسان آتے ہیں اور ہم انسان چلے جائیں گے، لیکن موت سے کسی انسان کو اور کسی فرقے اور کسی مذہب کو موت سے انکار نہیں ہے۔ سبھی کو اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تمام انسانوں کا اس بات پر یقین ہے، اس لیے کہ اولین دنیا سے لے کر آخرین دنیا جتنے بھی انسان آئے ہیں، کوئی اس دنیا کے اندر رہ نہیں پایا ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی وقت کا شہنشاہ بنا دیا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے وقت کا سلطان بنا دیا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا وقت کا بہت بڑا امیر اور مالدار بنا دیا ہو، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکا ہے اور نہ ہی کوئی بچ پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موت کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمایا۔ یعنی جو بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر پیدائش ہوئی ہے ہماری، تو ہمیں مرنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی سے پہلے ہماری موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موت ایک خطرناک چیز ہے۔ موت ایک ایسی خطرناک اور ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان بھاگتا ہے، ہر انسان بھاگے گا۔ کوئی بھی انسان موت کے پاس اپنے پاس موت کو آنے نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس موت آ جائے گی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت بڑا صحت مند بن کے رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عیش و عشرت کی زندگی عطا کرے، ہمارے قریب کبھی موت آئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت دیا ہے، ہمیں شہرت دیا ہے، ہمیں اونچے مقام عطا کیا ہے، ہمارے پاس کبھی موت آئے نہیں۔ لیکن آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے آپ پر آ کھڑا ہوں گے، آپ کی ماں آپ کے سہانے پہ، آپ کے بستر کے اوپر تڑپتی رہ جائے گی۔ ماں کہے گا کہ اے رب دو جہاں، اے عرش والے، کہاں کا انصاف ہے کہ میں 90 سال کی بوڑھی عورت اس سرزمین پہ موجود ہوں، ہماری پاس موت نہیں آئی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمارے اولاد کو چھینا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد سے پہلے ہماری موت ہمیں دے دیتے، لیکن ہمارے اولاد کو بچا لیتے۔ لیکن رب کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی نا انصافی، نہ کوئی گھوس کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی سفارش چلیں گے۔ جس کی موت کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اسی کی موت لے کے جائیں گے۔ باپ تڑپتا رہ جائے گا، رشتہ دار تڑپتے رہ جائیں گے، ماں روتی رہ جائے گی، بچے کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، دنیا کی دولت لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی عطا کر دیجئے اور ہماری ساری دولت لے لیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کبھی دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ آپ کے دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، آپ کی شہرت اور جاہ و جلال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، آپ کی گریہزاری اور سفارش کو نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ وہ کام کر کے رہے گا جس کام کو کرنے کے لیے رب دو جہاں نے اسے مقرر کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، موت ایک خطرناک ایسی چیز ہے جس چیز کو پینے کے لیے کوئی کیا کرے گا، تیار نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس موت کا تلخ اور اس موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک موت اتنا خطرناک اور اتنا کڑواہٹ موت کا پیالہ ہے جس پیالہ کو انسان پکڑنا نہیں چاہے گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس آ جائے گی تو موت میں آپ کو وہ مٹھاس نہیں ملے گا جو آپ کو لذیذ کھانے میں ملتا ہے، موت میں وہ مٹھاس آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو بریانی میں ملتا ہے، موت میں وہ لذیذ مٹھاس آپ کو نہیں ملے گا جو جوس اور لسی پینے میں آپ کو ملتا ہے، لیکن موت کا پیالہ اور موت کا گلاس آپ کو اٹھانا پڑے گا اور آپ کو پینا پڑے گا، اور اس دار فانی سے آپ کو دار بقا کے لیے کوچ کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے معاشرے میں دیکھیے،
अपने पड़ोस में देखिए, अपने घर में देखिए कि जिसको जान से ज्यादा प्यार करते थे लेकिन वो हमारे साथ छोड़ के चले गए, जिसको अपने से ज्यादा इज्जत देते थे वो हमें छोड़कर चले गए थे। लोग दुनिया के अंदर गौर और फिक्र करते हैं कि हमारे बादशाह का इंतकाल हो जाएगा तो इस सल्तनत का मालिक कौन होगा, इस सल्तनत को कौन चलाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया से किसी के जाने से दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आप लोग अफसोस करते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब मर जाएगा, हमारा मालदार मर जाएगा, हमारा बादशाह मर जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री मर जाएगा, हमारा आलिम मर जाएगा, हमारा फाजिल मर जाएगा, हमारा मंडल मर जाएगा, तो हमारा गांव का इंसाफ कौन करेगा, हमें फतवा कौन देगा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, कुरान का वादा है कि किसी के जाने से और किसी के आने से दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब फौरी तौर पर हमें और आपको थोड़ा परेशानी और थोड़ा तकलीफ होनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चला जाता है, काम होता रहता है। आप सोचेंगे, आप सोचते हैं कि हमारे इलाके का मशहूर डॉक्टर का इंतकाल हो जाएगा तो हमारा इलाज कौन करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक सूरज को बुझाता है तो दूसरा सूरज हमारे लिए रोशनी करने के लिए जरूर भेज देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाएगा लेकिन फिर भी इस दुनिया का इलाज और मुआलिज होता रहा है। दुनिया का इंसान का मतलब क्या होता है, इलाज हो रहा है। हाकिम मर जाएगा, लोग सोचता है कि हमारी अदालत में हुक्म का फैसला कौन करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन हमारा अदालत में हुक्म जारी होता चला आ रहा है। इंजीनियर मर जाएगा, लोग सोचता है कि हमारे घरों का नक्शा कौन बनाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका उस इंजीनियर के मरने के बाद आपकी जिंदगी में और उस दुनिया के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फौरी तौर पर हमें और आपको अफसोस होता है। मैं आपको बता दूं कि आज हम हैं कि हम अपने कंधों पे मुर्दे को मतलब कब्रिस्तान के लेके जाते हैं और ले जाने के बाद दफन कफन कर देते हैं। बीबी बाल बच्चे रिश्तेदार क्या करते हैं, एक दिन दो दिन चार दिन रोने के बाद आपको भूल जाते हैं और हमें भी भूल जाएगा और हम भी अपने रिश्तेदार को भूल जाते हैं। जिस बीबी को आपने अपने जान से ज्यादा प्यार किया था, जिस बच्चे को आपने अपने जान से ज्यादा प्यार किया था, आपने ईद के मौके पर खुद अपने जिस्म मुबारक में पुराने कपड़े से ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया और जिस बीबी बाल बच्चे को आपने नए कपड़े और महंगी कपड़े आपने खरीद कर दिया, आपका इंतकाल हो जाएगा, वो बीबी बाल बच्चे आपको कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। दो चार दिन खून का आंसू होने के बाद आपको भूल जाएगा। आप अपने मुआशरे में इसका जायजा लीजिए कि इंसान का मौत हो जाती है, इंसान चला जाता है, कब्रिस्तान तक बच्चे जाते हैं, घर को वापस आते हैं, दो चार दिन आंसू बहाते हैं, फिर अपने बाप को भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे बाप का कब्र धंस चुका है, कि हमारे बाप को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। लेकिन दोबारा कब्रिस्तान में बाप की कब्र की जियारत के लिए हम लोग जाते नहीं है, हम लोग अपने दादा की कब्र की जियारत के लिए जाते नहीं, हम अपने बीबी की कब्र की जियारत के लिए जाते नहीं। कब्र के अंदर बड़े बड़े घास उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, कब्र धंस जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, कब्र के अंदर पानी जम जाता है दोस्तों। लेकिन वो प्यारा बीबी और प्यारा बच्चा और प्यारा रिश्तेदार आपकी कब्र की जियारत के लिए कभी कब्रिस्तान का रुख नहीं करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मरने के बाद आपका कोई नहीं होगा। इसलिए कुरान कहता है कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कि क़यामत के दिन और मौत के बाद इंसान एक दूसरे से भागेंगे। जो हम अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि खुद आग को जल जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ा भी तकलीफ देना नहीं चाहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज फरमाएगा कि माँ ये तो अपने आप को कहता है कि दुनिया के अंदर ये तेरा औलाद था, लेकिन माँ कहेगी कि नहीं या खुदाया, मेरा दुनिया के अंदर कोई औलाद नाम का चीज नहीं था। लेकिन आज हम और आप और हमारी और आपकी माँ हमारे और आपके लिए मरती है, तड़पती है, अपने जान को देने के लिए कुर्बान है। माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए जान के कुर्बान दे दूंगा, लेकिन बच्चे को छोड़ नहीं सकता। लेकिन क़यामत के रोज वही माँ आपको और हमें भूल जाएगी, वही भाई आपको और हमें भूल जाएंगे। जिस भाई और जिस बच्चे और जिस बीवी के लिए हम और आप दुनिया के अंदर मतलब इतनी कोशिशें करते हैं, वही बाप जिस बाप ने हमें और आपको खून पसीने करके अपने दौलत को खर्च करके रातों दिन को एक करके हमारी पीछे और हमारे पीछे मेहनत किए हैं, लेकिन वही बाप जब दुनिया से गुजर जाता है, कब्रिस्तान को उसको रख देते हैं, फिर बाप को भूल जाते हैं। दो चार दिन के बाद आज बाप का कब्र के अंदर क्या हाल है हमें मालूम नहीं है। कब्र धंस जाता है, कब्र के अंदर पानी के मौसम में पानी जम जाता है, लेकिन कब्र की जियारत के लिए हम दोबारा जाते नहीं। दो चार दिन पड़ोस को दिखाने के लिए, अपने गांव मोहल्ले को दिखाने के लिए खून का आंसू रो लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये मौत एक ऐसी खतरनाक चीज है जो हमारे और आपके पास
आकर रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान कहता है ऐनमा तकुन युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि दोस्तों मौत से हम और आप भाग नहीं सकते हैं। चाहे आप और हम शीश महल में बैठ जाएं, चाहे समुद्र के पानी में छुप जाएं, चाहे पहाड़ों के ऊपर अपना डेरा डाल लें, लेकिन मौत का वक्त आ जाएगी तो हमें और आपके पास मौत आके पहुंच जाएगा। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हमारे पास पहुंच जाएंगे। हमारे पास पहुंचने के बाद हमारा टिकट कट जाएगा। हमारी ये मतलब जिस जिस्म पे हम और आप फख्र करते हैं, जिस जिस्म पे हम और आप अपनी फख्र करते हैं और अपना नाज करते हैं, वो जिस्म मुर्दा लाश बन जाएगा। और लोग उस दिन आपको अपने नाम से नहीं पुकारेगा कि ये लाश को उठाओ अब कब्रिस्तान तक पहुंच जाओ, लेकिन लाश से पहले जब आप जिंदा थे तो आपको बादशाह कहा जाता था, आपको आलिम कहा जाता था, आपको इंजीनियर कहा जाता था, आपको डॉक्टर कहा जाता था, आपको हाकिम कहा जाता था। लेकिन जब आप मर जाओगे तो आपको मुर्दा लाश कहा जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमने अपने गांव मोहल्ले में देखा है कि आज सरदार का मौत हो जाती है, हम ऐलान करते हैं कि इस साहब का जनाजा है, इस मैयत का इतना बजे जनाजा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसकी नाम को भूल जाते हैं, उसकी जाह व जलाल और उसकी अजमत को भूल जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मौत को याद रखेगा आप, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपको दोबारा लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिंदगी अता किया है, लेकिन हमें और आपको फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दोबारा लौट कर जाना है और रोज़े क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब होना है। आप दुनिया का हर काम कीजिए, लेकिन आप भी मौत को कभी मत भूलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मौत हमारे पास आकर रहेगी और क़यामत के रोज मैदान महशर में हमें उठाया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये तनीम खमसन कबला खमसिन, कि मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, पांच चीज को पांच चीज से पहले गनीमत समझो, पांच चीज को पांच चीज से पहले ज्यादा बेस्ट समझो, बेहतर समझो। अल्लाह के नबी ने एक एक करके गिनती हमारे सामने लाकर रख दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबाबक कबल हरामिक, अपनी जवानी को अपनी बुढ़ापा से बेहतर जानो, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापा से गनीमत समझो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी अता किया है। हमारे अंदर वो जोश व जज्बा है कि हम मजबूत से मजबूत पहाड़ को तोड़ देते हैं, हम मजबूत से मजबूत किले को ढा देते हैं। हम अपने जवानी के बलबूते पे, हम जिस जमीन पे आज हम जी रहे हैं, शेर की तरह दहाड़े मारते हैं और हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। लेकिन उस इंसान से जाके पूछो जो जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला की जवानी जा चुकी है, उसके पास बुढ़ापा आ चुका है, उस बूढ़े इंसान से पूछो कि वो बूढ़ा इंसान इसी सरजमीन पे एक जमाना था, 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो भी इसी सरजमीन पे शेर की तरह दौड़ता था और हाथी की तरह चिंगार मारा करता था। इसी जमीन पे उसका दबदबा होता था, इसी जमीन पे उसकी सल्तनत होती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जवानी उसे छीन लिया गया, बुढ़ापे उसके पास आ गए। आज उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, मस्जिद को आने के लिए मजबूर है, मस्जिद को आने के लिए बार बार सोचता है कि अगर बारिश हो जाएगा तो मस्जिद को मैं कैसे जाऊंगा, पैर लड़खड़ाता है। जिस सरजमीन पे वो रन लेने के लिए 30 से 40 की स्पीड में दौड़ा करते थे, आज वो इंसान मस्जिद को पहुंचने के लिए मजबूर है। आज डंडा सहारे मस्जिद को आते हैं, सीढ़ी चढ़ने में उसे तकलीफें होती है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, वो सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, सही से रब्बुल आलमीन के लिए मस्जिद के अंदर इबादत नहीं कर पाते हैं, वो कुर्सी के सहारे हो जाते हैं। अगर वो इतने भी ऐसे इंसान है कि कुर्सी में भी नमाज नहीं पढ़ पाते तो बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उसी इंसान से पूछिए कि एक जमाना था कि हमारे और आपके जैसे उनके पास भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी जवानी अता किया था, लेकिन ये वक्त का घुमावदार गेम है, ये वक्त घूमेगा और हमें भी और आपको भी उसी बूढ़े इंसान की तरफ, हमें और आपके पास भी जवानी चली जाएगी और बुढ़ापा आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अपने जवानी को अपने बुढ़ापा से ज्यादा बेस्ट और बेहतर समझा करो, इसलिए कि बुढ़ापा आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्तो सिना, रब की इबादत उस अंदाज में नहीं कर पाइएगा जिस अंदाज में हम और आप आज जवानी में झुक जाते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। जिस हालत में अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमें रुकू करने के लिए हुक्म दिया है और जिस अंदाज में रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं उसी तरह तुम लोग नमाज पढ़ो जिस तरीके से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। जब आपके पास जवानी रहेगा तो जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा किए हुए नमाज के मुताबिक नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा, आपका घुटने में दर्द रहेगा, आपका हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आप
सही से नमाज के और रुकन को और उनके अरकान को अदा नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुसलमानों, आप क्या करो, अपने बुढ़ापे से पहले अपने जवानी को गनीमत समझो और अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इतनी इबादत क्या करो। जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की खौफ खुदा से और अल्लाह तबारक व तआला के डर से अंधेरी रात में इतनी रोया करो कि अल्लाह तबारक व तआला को आपकी जवानी पसंद आ जाए। और रोज़े क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि 7 लोगों में से एक लोग वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जगह देगा। और उनमें से शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि वो जवान जिसने अपने जवानी रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए गुजारा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो हमारी जिंदगी, बुढ़ापा, जवानी और बचपना, इनमें से अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा हमारे पास जो पूछा जाएगा, हमें और आपसे जो सवाल किया जाएगा, तो हमारी जवानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहेगा कि आप तुमने बुढ़ापा में क्या किया था, तुमने बचपना में क्या किया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे कस के हिसाब लेगा, हमसे जो सवाल पूछेगा वो हमारे जवानी के बारे में। अल्लाह फरमाएगा कि नौजवान, मैंने तुम्हें जवानी अता किया था, उस जवानी को तुमने किसके पीछे सर्फ किया, कहां पे लगाया, तुमने मेरे डर से मस्जिद में कितना वक्त दिया, कै वक्त की नमाज पढ़ा, खौफ खुदा से तुमने कितना अपने आंसू को बहाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अगर रात गुजरी ना होगी, अल्लाह तबारक व तआला की डर से हमारे आंखों से आंसू नहीं बहाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला के डिजिटल कार्ड में जब निकाला जाएगा तो हमारी और आपकी जवानी में नेकी से ज्यादा बुराई मिलेंगे, तो वो फरिश्ता जो आपको जन्नत के लिए जाने के लिए वो तैयार रहेगा, वो किस तरीके से हमें और आपको जन्नत का वो उम्दा और आला मकाम कैसे अता करेगा, आपको जहन्नम अता कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप क्या करो, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापा से ज्यादा बेहतर और गनीमत समझो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त हो चला है, वरना ये चारों आपको और आपके सामने इनकी सिफत को बयान करते और अच्छी तरीके से समझाते। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को मौत को याद रखने के लिए और मौत से पहले और मरने से पहले हमें मौत की तैयारी करने के लिए तौफीक अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी हम मुसलमानों की मौत हो तो हालत नमाज में हो। इससे बढ़कर कोई खुशनसीब की मौत नहीं होगी कि आपकी मौत नमाज में हो, आपकी मौत मस्जिद में हो, आपकी मौत रमजान के महीने में हो, आपकी मौत जुमे के दिन हो। ये सब बेहतर मौत की सिफत है। हम और आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी हमारी मौत हो तो नमाज की हालत में हो। नमाज की हालत में आपकी मौत होगी तो आप जाएंगे कहाँ? जन्नत के अलावा आप जहन्नम को अल्लाह के फरिश्ता आपको लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को दुनिया के अंदर भी कामयाब बनाए और रोजे आखिरत में भी हमारा चेहरा सुर्खरू हो और हमें मरने के बाद जन्नत के अंदर आला शाला मकाम मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।